another entity class that is और बच्चा है नहीं and another entity class. So now I write down here patient and I write down here patient history. अब आप बेशक दोबारा दोबारा नहीं बनाइएगा, सिर्फ समझने पे गौर करें क्योंकि आपने पढ़ लिया है तो इट इज एक्सीलेंट, और लिख लिया तो बहुत ही अच्छा हो गया, सिर्फ इसको समझें. Patient and patient history. We have two entity classes. Now I'll show you the attribute of the entity class, that is the patient. It has a primary key, patient ID, patient name, patient address, patient age, his gender, everything. But I'm just mentioning over here, for example, patient ID. Here, this is the primary key. Now here we have patient name. And as I told you, there would be so many attributes that you need, but I am not drawing all those. And here I have an attribute sort of name, date, and here we have symptoms, that is fever or cough or anything. So I write down over here date, right? And I write down over here symptoms. Symptoms mean alamat. So now, if patient has patient ID, patient name, and patient history has the date, on which date somebody had fever or cough or anything. And now here is the relationship between them. And now I ask you one thing. One patient can have many patient histories. Sir, how? Maybe on 10th of March, for let's say I say I am P1, right? And on 29th March, no, it is my name, sorry, patient name, Imran. And on 29th March, day before yesterday and till today, I am suffering from flu and cough. That is like this. And anybody else went to the same clinic or the hospital, and unfortunately, he got the same symptoms. वो कोई और था, and he got the flu and cough. So now, let me ask you one thing. Can these symptoms exist? Can this record exist if there is no patient for it? Let me know that first. No, sir. No, sir. No, sir. No, So sir. that means, in fact, very good. That particular entity class its records, its instances cannot exist until and unless the records of patient are present. I cannot say that somebody had the flu and cough on 29th and you ask me, sir, which patient? I said, no patient. You said, sir, ये बहुत stupid सी बात है कि patient है ही नहीं और आप कह रहे हैं बुखार था और ये कोई जिन तो नहीं है. So this is very obvious thing that patient history is dependent. It requires that there must be a patient, then there will be a patient history. एक पर्ची आपको देते हैं, चलो इसकी मिसाल ले लेते हैं. Whenever you go to the medical center and you tell the symptoms to the doctor side gives you a receipt or a kind of page on which your blood pressure, your age, your name, your reg number, and your symptoms at that time are written down. Yes or no? Yes, sir. Yes, If Yes, sir. sir. somebody brings me that page and I look at the symptoms and I say that where is the patient and you say that sir, there is no patient, so I will be saying I will say like this, you're a pagal, you're mad. If there is no patient, then how these symptoms can be on that page? So that is important. तो इसका मतलब क्या हुआ जरा समझिए. This is weak entity class. It is dependent, and this is
strong entity class. That is, it can exist without having any patient history. I am a person, or there is a baby who has been registered in his father's panel hospital, in any hospital that is on the panel, and we write down that I have got this son or daughter. So my son or daughter has never gone to hospital. So that person registered in that hospital is a patient, but he has not gone to the hospital. So will there be any patient history with them? देखो, जो हमारे अब्बुओं की सर बात हमारे यहाँ ये तो नहीं, अब लेकिन बात सरकारी दफातर में होता है कि आपके ना जब आपके जो डिपेंडेंट्स होते हैं, अम्मी अब्बू बीवी बच्चे, तो आप इनकी रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। जब बच्चा पैदा हुआ आप रजिस्ट्रेशन करा दी कि ये वाला मेरा बच्चा है और ये मेरी फैमिली का हिस्सा है। खुदा ना खास्ता जब कोई बीमार होगा तो ये आपके हॉस्पिटल मेडिकल पैनल पर आएगा। लेकिन अब फर्ज करो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है और वो कई साल तक गया ही नहीं, तो क्या उस बच्चे की कोई पेशेंट हिस्ट्री अस्पताल में पड़ी होगी कि उसको बुखार हुआ था, खसरा हुआ था, कोई और बीमारी हुई थी? वेरी गुड। नो तो सर। देखो, नाउ वी रियलाइज पेशेंट कैन एग्जिस्ट। वो बच्चा मौजूद है, लेकिन पेशेंट हिस्ट्री इज नॉट देयर। विदाउट पेशेंट हिस्ट्री पेशेंट इज देयर, बट नाउ द वाइस वर्सा थिंग। एक मिनट, कोई और बच्चा, now vice versa things. What is that, sir? Patient history cannot exist if there is no patient. Now you got me or not? Yes, sir. यस सर। Excellent. Now my question is, Yes, sir. now you very good. ठीक हो गया बच्चों, बस थोड़ी सी हिम्मत मुझे भी दो बेटा कि मुझे फील हो कि पढ़ाने में मजा है। अदरवाइज जब ये हिस्ट्री वाली बातें है ना, तो ये ऑनलाइन वैसे मनहूस मीडिया है, मीडियम है, कोई लॉग इन हो रहा है, कोई लॉग आउट हो रहा है, कोई कंसंट्रेशन नहीं है और ना आप मुझे नजर आ, तो आपका जवाब कम अज कम पता नहीं समझ के दे रहे हो नहीं, लेकिन मुझे हौसला दे रहा है। एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी के बाद वी हैव अ कॉन्सेप्ट दैट इज रिलेटेड टू द एग्जिस्टेंस, इसी के अंदर है। इट इज आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। Sir, जी बेटा। सर इसमें एग्जांपल जी मेरा sir, बेटा। ये strong सर इसमें एग्जांपल हो sir, सकती है सर, क्रिकेटर और क्रिकेटर हिस्ट्री। बिल्कुल हो सकती है, उसका मैच रिकॉर्ड या प्लेयर रिकॉर्ड उसकी हिस्ट्री हो, बिल्कुल होगी। प्लेयर हिस्ट्री, प्रोडक्ट और सेल्स हिस्ट्री, ये प्रोडक्ट कब कब किस किस तारीख को कितनी कितनी बिकी, ये बड़ी मजे की चीज है, इसलिए मैंने कहा था इसको पढ़ना है। ठीक है, अब देखो जरा, अब जरा ये चीज समझनी शुरू करो बेटा। जी बेटा बोलिए। सर काइंडली अगर कोई वर्बली कोई इसके अलावा कोई और एग्जांपल भी दे दें सर। मैं अभी दे देता हूँ। स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्लास, और इसको हम स्ट्रॉन्ग भी कहते हैं और इसको हम इंडिपेंडेंट एंटिटी। मैं एक सेकंड में पहले एक पे खत्म कर लूं, फिर मैं तुम्हें अभी लेकर आऊंगा, एक और चीज पढ़ाऊंगा, तुम्हें उसमें भी नजर आएगा कि यार ये तो यहाँ पे भी बिल्कुल वीक बन गई है। रुक जाओ जरा सा, एक लम्हे इंतजार करो। दिस इज वीक और डिपेंडेंट एंटिटी क्लास। sir, ये strong और weak को थोड़ा सा sir एक दफा clear कर बताने दें। लगा हूँ। देखो बेटा, द एंटिटी क्लास whose records cannot exist, it is weak, it is dependent. So dependent upon what? Why weak? Because it cannot exist without the existence of patient. So this is weak and this is dependent upon patient. Why it is strong, sir? Because it can exist without any record of patient history. It is strong, it is independent. अब समझ में आता है या नहीं? Yes, sir. यस सर। Now my question, सर एक और सवाल है सर। बोलो। सर हम इसको एक और तरीके से ये कर सकते हैं कि हम पेशेंट के पास उसकी अपनी प्राइमरी की है लेकिन पेशेंट हिस्ट्री के पास नहीं है। मुझे वहां तक पहुंचने दो, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो माशाल्लाह, तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन जिन दोस्तों को थोड़ा सा भी शायबा है या जो भी सवाल कर रहे हैं उन तक मुझे आने दो। सो नाउ चेक, दीज आर द टू एट्रीब्यूट्स। कैन आई मेक डेट as the primary key or can I make symptom as the primary key? डेट को तो बना सकते हैं प्राइमरी। डेट को बना सकते हैं, एक्सीलेंट। अब देखो जरा, अगर हम डेट को प्राइमरी की बनाए और एक तारीख में ही 50 हमारे पास पेशेंट्स आ जाए, वी हैव 50 पेशेंट्स ऑन द सेम डेट, then can date be the primary key? Because primary key is always unique, we have studied that. No, sir.
कैन इट नो बी? सर, फिर नो टाइम सर। को वेरी गुड। अब जरा सोचो कि आप जब कभी फिल्म्स में मैं जाता हूँ ना तो वो क्या करते हैं, तुम इस चीज को बड़ा, अभी तुम्हारा इसका भी जवाब मिल जाए, टाइम को। फर्ज करो वहां पे क्योंकि कंप्यूटराइज रसीदें नहीं होती थी अभी, कुछ अर्से पहले तक, इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन वो हमें क्या करते थे, एक ही रसीद के ऊपर, अब मुझे उसने लिखा इमरान सईद, उसने लिखा जनाब 29/3, और उसने 21 लिख के उसने आगे लिख दिया 9 बजे, और रसीद मेरे हवाले कर दी। अभी जरा नोट करना, थोड़ी देर मेरे फौरन बाद जो बंदा लाइन में था वो आया, उसका नाम अब्दुल्ला था, उसकी रसीद बनी, उसी लम्हे वो आया है, ठीक है ना, और उसी 2-4 मिनट के अंदर 29/3/21, क्या टाइम लिखेगा वो? 9 बजे उसी टाइम आया तो वो वेरी 9 गुड बजे सर। वो लिखेगा। इतना नहीं होता कि वो 9:01 और 9:1.5 घड़ी में देखें, वो 50 तो नहीं, 3-4 के ऊपर 9 बजे लिखा नजर आना शुरू हो जाता है। तो क्या अब मैं, आप, माई क्वेश्चन इज, कैन डेट एंड टाइम बी द प्राइमरी की? दोनों को मिला के बना सकते हैं? नो सर। नो सर। नहीं। So now No, comes up another question related to this particular thing, that is identifying relationship. अब जरा इसको समझना. What is an identifying relationship? It is a relationship here. It is a relationship that exists between a strong entity class and a weak entity class. And देखो अब ये हमारे पास weak है, strong है, तो इसका जो ये relationship है इसको identifying relationship कहते हैं. So it would be shown with डबल डायमंड, ये यूं शो किया जाता है, तो फौरन पता चलता है हमारे बनाने डेटाबेस डिजाइनर्स को, डेटाबेस इंप्लीमेंट करने वालों को, कि यार यहाँ पे कहीं पे कोई गड़बड़ है. दिस एंटिटी क्लास हैज द एट्रीब्यूट बट नो एट्रीब्यूट कैन बी अ प्राइमरी की, डेट कैन नॉट बी अ प्राइमरी की. मैंने कहा ओके फाइन. सो इट सेज आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप अगर आए तो यू विल हैव टू शो इट विद डबल रेक्टेंगल. बहुत ख्याल रखना, किससे शो करोगे आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप और एंटिटी क्लास को? डबल वीक वाली को डबल रेक्टेंगल और डबल इससे. वेरी गुड. सो नाउ इफ इट इज वीक और ये कंफर्म हो गया, सो नाउ आई ऑलवेज टीच यू अ स्टोरी in a hospital where babies born, and normally so many babies born at the same time within few hours. So there can be a concept of exchanging or mixing the kids. ये पहले होता था कि जनाब ये जो मेरा बच्चा है ये फलाने से चेंज हो गया है, ठीक है, ये तब्दील हो गया है. तो ये बड़े चीजें थी. अब क्या होता है in the hospitals when a baby born, the nurse immediately applies क्या कहोगे उसको, छोटा सा एक ना रिस्ट बैंड होता है, छोटा सा बैंड प्लास्टिक सर होता है वो जो हाथ पे बांधते थे बच्चों रिस्ट. के। हाँ, आपने अपने छोटे बहन भाइयों या भतीजे भतीजों पे देखा होगा, एक रिस्ट बैंड वो उस पे लगाते थे जो कि काटे बगैर नहीं निकलता. यू कैन नॉट रिमूव इट, एंड ऑन दैट बैंड दे राइट द नेम ऑफ, सर बेबी मदर का नेम तो है ही नहीं, बेबी का नेम सर तो अभी मदर नहीं है, तो सर मदर मदर, मदर का मदर्स नेम. बिकॉज अब देखो तुम्हें बहुत समझ में आएगा. In fact, that entity, that baby is so weak that he cannot tell his name, tell about him. So he is weak and he has no name so far. We don't know him. So if there are 10 babies, we cannot recognize whose baby it belongs to which mother. So what we do, we put an identity of the mother. We bring the name of mother, this PID, independent. ठीक है, जो उसके रिलेटेड फादर का है, नेम लिखिए, इंडिपेंडेंट मदर है. का नाम लिखेंगे फिर. मदर का नाम लिखते थे ना वहां पे, बाद में जब वो आ जाता है घर पे तो फिर उसके अब्बू का नाम साथ लगा दिया जाता है जब हम उसको. लेकिन हॉस्पिटल में दैट बेबी हैज नो आइडेंटिटी, दैट इज जस्ट अ बेबी. तो उसके ऊपर फिर क्या लिखते हैं, बेबी ऑफ खदीजा, बेबी ऑफ फातिमा, बेबी ऑफ जैनब, बेबी ऑफ आयशा. तो हो क्या रहा होता है, जो माँ का नाम होता है वो साथ लगा दिया जाता है. मेरी आप बात समझ रहे हैं? यस सर। So now Yes, what will happen over here? We will bring now this mother or father's name over here for the baby,
and now it would be patient ID, PID, and now if I say that only PID is the primary key, no, I am wrong. Sir, how wrong? मैंने कहा check, और इसको देखते रहना सारे बच्चे जरा. Check. If I went on 29, P1, and it is not underlined, on which date? Sir, 29th. 29, and somebody else, P2, also went on the same date, yes or no? Yes, sir. अब देखो क्या होता है. I go today. I'm not feeling good, so I on 31st 3 2021 I again went, but now my symptoms are same. maybe डॉक्टर ने कहा भाई वही symptoms हैं आपके अभी तक, आप दवाई जारी रखें, और अगर ना ठीक हो तो 2 दिन बाद आए. Now I again went on 3rd of April, and now it went up to flu slash cough slash खुदा ना खास्ता fever. So now if I ask you, can this only PID be the primary key? No. No, sir, because it is repeating. Check P1, You. check P1, sir. Only PID cannot be the primary key. So this is the reason we say that whenever there is an identifying relationship, there is a weak entity class, existence dependency, then normally this class does not have its own primary key. Date is repeating 29, 29, so it cannot be the primary key. So we bring the primary key of the parent class or the strong entity class, PID, and we consider both of them. PID along with the date will make a composite primary key. Got me or not? Yes, sir. So Yes. अब एक Yes, बात sir. समझिए, Yes, what is sir. what is a composite primary key, sir? So remember, if I'm standing in a school ground or prayer hall, ये जो भी उनका वो होती है ना जगह, assembly area, sorry, and I call out roll number 5, check roll sorry, not reg number, roll number 5. So how many students can I have? Sir, many. Many Too students many, right? from every और class. क्यों many? मैंने रोल नंबर 5 बोला है. एक Sir, सर वो हर डिफरेंट क्लास में रोल नंबर 5 होगा. Sir, हर बस क्लास के अंदर Excellent. different. करना पड़ेगा. Excellent, very good. Each class has roll. Each class has roll number 5. So maybe अगर मेरे पास 10 क्लासें हैं तो 10 आ जाएंगे, और अगर सेक्शंस भी हुए 4-4 तो 40 लड़के आएंगे. यस और नो? Yes, sir. तो देखो अब मेरे बोलने के अंदाज पे गौर करना. मैं पहले इसको प्राइमरी की समझ रहा था रोल नंबर को, लेकिन ये नहीं बनी. अब देखो मैं क्या बोलूंगा, चेक करो. रोल नंबर 5 ऑफ क्लास 7. अब कितने आएंगे अगर सेक्शन 1 हुआ तो? Single एक ही thing. है सर. एक ही सर है. एक ही Single. आएगा. तो नाउ चेक, आई डिड नॉट कंबाइन बट आई पुट ऑफ, यानी मैंने क्या किया, मैंने ऑफ को यूज किया, मैंने 2 को जोड़ा. सो हियर आई विल आस्क लाइक पेशेंट नंबर 1 एंड हिज सिम्टम्स ऑन 3rd April. देखो आई एम टेकिंग द पेशेंट आईडी along with the date. मैं 2 को मिला के बोलता हूं तो मुझे एक रिकॉर्ड मिलता है. Otherwise, if I was asking P1 के symptoms, so P1 had the symptom flu and cough, flu cough and fever. So I was not able to get a unique record. But when I combine, I did not combine, but I considered these two. हम जोड़ते नहीं है, हम दोनों को इकट्ठा नहीं करते, एक attribute नहीं बनाते. We have 2 different attributes, but we consider both of them. When I say that P1 in 31st March, then you say that still you have flu and cough. So that means now these two are playing the role of primary key, and thus that primary key is not a single key, it is
compose of two keys? Yes or no? Yes, sir. You got the concept of composite primary key? All the guys who were asking कि सर ये बता दीजिए. जी Yes, सर. sir. Sir. Excellent. Excellent. अब देखो सुनो, sometime it happens, और ये मेरे साथ एक आध दफा हुआ जब थोड़ा सा पहले खासा, कि मुझे दिन में 3 दफा जाना पड़ गया. तबीयत खराब हुई तो ले गए, तो थोड़ी सी और हुई तो ले गए, और फिर रात को भी जाना पड़ा. तो अब मेरी वो डेट जो पड़ रही थी ना बेटा, तो वो कुछ यूं पड़ रही थी, आप देखिए P1 ही है, और 3rd अप्रैल ही है. लेकिन अब ये बंदा जब दोबारा आया है तो इसकी कफ और फीवर रह गया है, इसका फ्लू कम है. क्या ये हो सकता है या नहीं? Sir, हो सकता है. Yes, Yes, sir. sir, हो sir, सकता हो है. सकता है. सर हो तो सकता है, मजबूरी में ऐसा हो रहा होता है. बाजों का पेशेंट जाते हैं सर तो ये तो गड़बड़ है. तो नोट करो, क्या नाउ इट कैन बी द प्राइमरी की? ये दोनों मिलकर प्राइमरी की बना पा रहे हैं? No, sir. नो सर. So now sir. when we will talk about the computerized database, we always add another thing, another attribute, and there is time. ये देखो, शहीर चुप ही हो गया. शहीर तुम्हें उस वक्त जवाब देने से मना किया था, चुप होने को नहीं बोला था. उसने कहा सर ने मुझे कहा नहीं बोलना है तुमने. सर नाराज हो गया सर. माइक खराब हो नाराज हो गया गया? सर पीसी मोबाइल से सर. ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है. मैंने कहा यार वो कह रहा है मैं जवाब नहीं दूंगा, जाओ. नाउ वी विल कंसिडर P1 ऑन 3rd अप्रैल, P1 और 3rd अप्रैल. लेकिन नाउ हियर वी विल राइट डाउन कैसे. 9 AM जब ये आया तो तीनों चीजें थी इसको, फीवर भी था, कफ भी थी, सब कुछ था. और जब ये दोबारा से तबीयत खराब महसूस हुई, लेकिन जब इसका हमने चेकअप किया, सिम्टम्स लिए, तो ये टाइम था 3 बजे दोपहर का. तो अब मुझे बताओ कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई माय रिकॉर्ड? ये बता दो. ID, Sir, date date. and time. Very date and time. good. ID, date and time. Now this And composite time. primary key is composed of not 2 attributes but 3 attributes. Check. Yes, sir. यस सर. Got me or not? तो देखो ये एक Yes, sir. एग्जाम्पल मुकम्मल है. इसका मैं तुम्हें दूसरी वाली रिकॉर्डिंग दिखा सकता हूँ, सुबह वाली जो मैंने तंग होके दी थी, और मैं तुम्हें अभी अभी वाली परफेक्ट है, क्योंकि इसमें बेदिली नहीं थी आपके. जब अब इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए फौरन. वो जो बच्चा मुझसे दूसरी एग्जाम्पल मांग रहा है, मैं चाहता हूँ मैं उसको जल्दी से एक और एग्जाम्पल दूँ. और अच्छी बात है, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा तो इंशाल्लाह आप बेहतर समझेंगे. स्क्रीनशॉट ले लिए बेटा? जी सर, ले लिया. चलो Yes, अब sir. मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी याद दहानी के लिए, कि तुम्हें बाद में भी याद रह जाए, कॉम्पोजिट प्राइमरी की भी तुम तक पहुंच गई है. अब ये भी तुम्हें आती है, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये एक्सेस में हम बनाते हैं बाकायदा. मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि जी आप कंट्रोल की होल्ड करें, 2 एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट करें और प्राइमरी की का बटन दबा दें. वो सेकंड में बनाऊंगा वो भी. अच्छा ये भी हो गया. अब देखो इस बच्चे ने जो सवाल किया था कि सर मुझे कोई डिफरेंट सी मिसाल दे. सो नाउ चेक. और मैं भी हेडिंग नहीं दे रहा हूँ, मैं भी हेडिंग नहीं दूंगा जान के, ताकि इसको पहले सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए. सो से आई वॉन्ट टू कीप डेटा अबाउट द कंट्री एंड इट्स प्रेसिडेंट. सदर कौन थे, सुदूर कौन थे उसके. ठीक है, तो देखो कंट्री. नाउ आई हैव एन एट्रीब्यूट कंट्री आईडी, country name, and president, and I just give it all the labels accordingly. Which one is the primary key? What are the other attributes? So let's say this is something. There is CID, country ID. This is कंट्री नेम. मुख्तलिफ मुल्क हैं और हमें मुख्तलिफ मुल्कों के नाम और उनके सुदूर रखने हैं. एंड सर जी बेटा.
सर मैंने वो वीडियो देखी थी सर, उसमें ये वाला भी एग्जांपल थी सर। मैं कह रहा हूँ मैं कि इसके अलावा भी दूंगा और मैं कुछ और दे दूंगा। तुझे लग रहा है कि सर टाल रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए सब कुछ पढ़ा रहा हूँ कि जब तुम अभी भी वो वीडियो देखो तो मैं खुशी हो कि यार मुझे आते हैं, मुझे एक लम्हा दो, मैं तुम्हें अभी कुछ और करके दिखाता हूँ। ठीक है सर, लेकिन मैं ठीक है, सिर्फ, कोई मसला नहीं ठीक सर, है, कोई मसला मैं नहीं, ठीक सिर्फ है सर, मैं थैंक यू, सिर्फ जज्बाती हुआ हूँ तुम्हें समझाने के लिए कि यार तुम्हें ये ठीक है सर, चीज क्लियर समझ में आता है, ठीक है। थैंक यू सर, और ये ठीक वजह है, कुछ और है, इसके अंदर भी टाइम डिपेंडेंट डेटा को मैं लेके आने वाला हूँ लम्हे के अंदर। ऊपर ला चुका हूँ लेकिन अभी बताऊंगा नहीं, मिक्स नहीं करना चाहता इसको अलग से। सो नाउ ठीक है सर, check. We have a country that is 92 dash 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 and our country name is Pakistan dash 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 and say, मैं आपसे बहुत पुरानी बातें ज़िया साहब की या उस फारूक लगारी साहब की बात नहीं करूंगा, अभी की बात करते हैं कि वी हैव अ प्रेसिडेंट ममनून हुसैन साहब। एंड आपको याद है कि ये अभी गुजरे पिछले दौर में ऐसे ही था। एंड द सेम Yes. कंट्री पाकिस्तान has now the president Arif Alvi sir. Yes or no? Yes, yes sir, sir. Yes, sir. Now check. Here I am facing an issue of primary key CID, country ID. Got me or not? जी सर। yes Yes, sir, sir. Yes sir. अब एक चीज है, I ask you a special question. I want, sorry, I want to keep names of all the presidents since 1947। 1947 में हमारे पास प्रेसिडेंट नहीं होते थे, गवर्नर जनरल होते थे, और ये बाद में जब हमारा कानून बना तो उसमें थे, लेकिन मैंने लिख दिया, ओ ओ सॉरी, 1947 से सब रखना चाहता हूँ। So now if you will check that, so I have just shown two presidents over here. So in that case, if I say that 1947 जब कानून बना और उसके बाद we got the presidents in Pakistan, so we got a list of presidents, yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. yes sir, And now here is the issue. Check. ये देखो, समझ में आती है मेरी बात? प्राइमरी की इज Yes. गेटिंग डुप्लीकेटेड, Yes, sir. यस और नो? इसका Yes, मतलब sir. है, जी अब जरा सर। समझना, तो मैं सारों को पुराने, अभी ये उस वाली वीडियो में नहीं है लेकिन जरा समझना। सर ये मल्टी वैल्यूड बन रहा है, हमारी इससे जान छुड़वा दें, पहले बताओ यस और नो? Yes. Yes, जी sir. सर। Yes, sir. पक्का? अब जरा देखो, मैं अब यहाँ से तुम्हें सिखाना चाहता हूँ कि पता चले कि हुआ क्या है। यार क्या करते थे जब मल्टी वैल्यूड आ जाए, सोल्यूशन क्या था जरा बताओ? तो हम टाइमिंग डाल देते थे, टेन्योर वगैरह। नहीं 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 नहीं, वो तो अलग बात है ना, बात की बात है, वो तुमने पढ़ लिया है असल में। हम मल्टी वैल्यू तो कैसे अलग कर रहे हैं? टाइम जरूरी नहीं होता बेटा। हमने तो हॉबी आईडी को अलग किया था, याद आया? अब तुम चीखना शुरू करोगे, हाँ हाँ सर दो एंटिटी क्लासेस बना दे, ऐसा ही है कि नहीं? सो Yes, वी sir. मेक एन Yes. एंटिटी क्लास एज द कंट्री, another as the president. So any country can have one or more presidents. So अब चेक करो तो तुम्हारी तस्वीर यूं बन रही है, COUNTRY कंट्री, और यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी क्लास का नाम मैं बना देता हूँ प्रेसिडेंट। एंड नाउ चेक, ये रिलेट हो गए दोनों आपस। हमने कहा था इनको जोड़ना लाजिम होता है कि वन कंट्री कैन हैव मैनी प्रेसिडेंट। अब ये अपना रूल पूरा कर देगी। एंड नाउ आई मेक द attributes accordingly. Only two attributes will remain in the country, this one and this one. So now here is the country ID and it would be the primary key. Here is the country name, sorry, name, and it is not the primary key, and these are related to this. अच्छा, अब जरा एक चीज पे गौर करना, मैं जो अब इस पे आना चाह रहा हूँ,
यहाँ पर अब एक चीज है कि ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट बनने वाला है अभी अभी, टाइम डिपेंडेंट डेटा। कि बताएंगे टाइम डिपेंडेंट डेटा क्यों बन रहा है, इसके अंदर टाइम क्यों आ गया? हॉबी में तो टाइम नहीं था सर, यहाँ पे क्यों आया है? क्योंकि देखो सर बेटा, टाइम से प्रेसिडेंट चेंज हो जाएगा। पीरियड की वजह से सर। excellent, excellent. Because with the passage of time, the president will change. In in 2018, Mamnoon was there, and then Arif Alvi Saab is here now. So, होता क्या है, whenever we have time dependent data, we add an attribute by ourselves. हम खुद कर देते हैं. And that attribute keeps what? It keeps time. तो इस क्योंकि ये टाइम रख रहा है, टाइम मीन डेट, टाइम मीन ईयर, टाइम मीन टाइम। तो डेट हो, ईयर हो, मंथ हो, टाइम, कोई भी चीज जिसका ताल्लुक टाइम से हो, तो उस वाले एट्रीब्यूट को दैट वी हैव एडेड, इट इज नोन एज टाइम स्टैम्प। एन एट्रीब्यूट दैट कीप्स द टाइम और डेट, इट्स नेम इज टाइम time stamp. Time So stamp. check, I put year here. So now you can tell me, sir, year is also a multi-valued attribute. Yes or no? Yes, sir. Yes sir. So now check. Yes, sir. And are these two related or not? Tell me. इनका ताल्लुक है? Yes, sir. सर बिल्कुल है। 2018 में फलाना, ऑल्दो हमारे यहाँ तो एक दिन में भी 2 हो जाते हैं, लेकिन जो निजाम है उसके मुताबिक ये होता है कि आपके पास you have in some specific year some specific president. So now that means this time stamp has been added by Year. us. हम लोगों ने रखा है diagram. That is why I added it later. I am adding the time sorry, the time stamp. Got me or not? Yes sir. ये हम ऐड करते हैं ताकि हम इसका अंदाजा ले सकें कि यार किस सन में कौन सा वाला प्रेसिडेंट था। सो नाउ चेक दीज स्क्रीन टू। बंद हो गई है। जी बेटा, पॉज हो गई है? नहीं सर चल रही है। तुम्हारा वो शायद स्लो हो, अपने उसको चलो मैं स्लो होता हूँ, तुम्हारा सिग्नल स्लो लग रहा है। अच्छा अब देखो, व्हाट विल वी डू? वी विल टेक दिस रिपीटिंग ग्रुप टू दिस वन। सो व्हाट विल आई डू? I will add 2 over here, year and president. And here we have the year and we have name, name, president name. पहले बताओ यहां तक किसको समझ नहीं आया? सर आ गया। श्योर? सबको आ गया है? श्योर? जी सर। Yes, sir. Yes sir. चलो अब देखो जरा, अब नोट करना। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द प्राइमरी की ऑफ दिस थिंग? सर आईडी, ईयर और प्रेसिडेंट नेम। वाई आईडी? प्रेसिडेंट नेम तो तुम अभी एक बात सुन ले, क्या पता अभी कहें कि हमने अभी सही खिदमत नहीं की आपकी, तो 2023 के बाद भी यही लोग हुक्मरान रहेंगे, तो लिहाजा आरिफ अलवी साहब 2023 में भी प्रेसिडेंट होंगे, तो मुल्क का नाम भी यही होगा, उसकी आईडी भी यही होगी, और उसका प्रेसिडेंट का नाम भी यही होगा। तो प्रेसिडेंट नेम और कंट्री आईडी तो नहीं बन रहा है भाई। सर डेट और क्या टाइम पता हमारी कोई, चेंज हो जाएगा। क्या पता हमारी खिदमत में कोई कमी रह गई हो, तो वो 2023 के बाद पूरी होनी हो। है कोई तेल वेल में रह गया हो हो जो सकता है निकालना। सर, शायद कर्जे खत्म हो जाए। क्या खत्म हो जाए? क्या बकवास कर रहा है? सर वो बोले कि 2023 में हम शुरू करेंगे कर्जे खत्म करना, हाँ, 5 साल लगे शायद। हो सकता है। ये काम बहुत मुश्किल है मेरे बच्चों। क्या तुम भी पता सर वो सर- खुद ही खत्म हो जाए। अल्लाह ना करे यार। चाहिए हम तो ना चाहे वो 5 बोले आइए हम आपको तो फ्री अल्लाह खाना लगाते।
मुझे लग रहा है IMF तो आ गया, बस दुआ करो पाकिस्तान की खैर हो, बस हम सिर्फ एक ही हमारी दुआ है, पाकिस्तान की खैर हो। अच्छा देखो बेटा, मुझे एक चीज तो समझ में आ गई थी, देखो इस बच्चे ने बोला है और बड़ा सही बोला, लेकिन पहले हमें उससे पहले ये बोलना था कि इनफैक्ट सर दिस इज गोइंग टू बी अ वीक एंटिटी क्लास। मैंने कहा हाउ सर, इफ देयर इज नो कंट्री देयर इज नो प्रेसिडेंट, बात खत्म हो गई, यस और नो। जी सर। Yes, sir. So the relationship is identifying relationship. Got me or not? यस सर। So now that means this is a weak baby, so it needs the parent's identity. So I'll take CID over here, CID over here. I will make this one and sorry, इसको मैं रेड ही करता हूँ, लेकिन मैं इसको लाइन के साथ ले आता हूँ, मैंने उसको। So now remember, we don't need the president name. This is enough. इसलिए हमें कहता नाम की जरूरत नहीं है. Now we can write down very easily over here 92 Pakistan, and now here we will write down 92 2013 Mamnoon Hussain Sahab, and then the same country but (92) 2013 डैश 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 और यहाँ पे आरिफ अलवी साहब। गॉट मी और नॉट, पहले तो ये बता दो। जी सर। तो Yes, ये sir. था हमारे पास एक और मिसाल। अभी इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लो टाइम डिपेंडेंट डेटा की, जिसमें तुम्हें ये नजर, एक मिनट रुक जाओ, एक जिसमें तुम्हें ये जरूर नजर आए कि यार ये इंपॉर्टेंट चीज सर ने बताई थी हमें कि भाईजान ये होती है टाइम स्पैन, इसका बहुत ध्यान रखना कि ये हम खुद ऐड करते हैं। अब इसका एक जरा स्क्रीनशॉट ले लो। सर ये RFLV 2018 नहीं आएगा? ओ ना लेना, बिल्कुल सही है क्या? सॉरी। अच्छा तू जाग रहा है, मैं सो रहा हूँ। सर इसमें हम एक और बोलो। सर अगर यूं ही हो जिस 2018 लिखा हुआ है तो सर हमें फिर इसमें टाइमिंग, एक और टाइमिंग भी तो ऐड करनी पड़ेगी। फिर हमें टाइम ऐड करनी पड़ेगी। मैंने आपसे कहा ना कि जिन मुल्कों के निजाम सही है वहां पे एक दिन में 2 शेड्यूल नहीं आते। तो लेट इट बी कि इंशाल्लाह ऐसा ही पाकिस्तान भी हो जाए कि यहाँ पे हर हुकूमत पूरा टाइम करे और फिर अवाम उसको निकाल सके या उसको दोबारा ला सके। ठीक है, चलो वापस आ जाओ सियासत से बाहर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अब देखते हैं, जो बच्चा कह रहा है कि मुझे कोई बिल्कुल नई एग्जांपल दें, तो अभी दे देते हैं उससे भी, और ये अच्छी बात है। थोड़ा सा टाइम और लूंगा, आज आपकी सुपरवाइज लैब नहीं है, लिहाजा अब आपने सिर्फ ये करना है कि अपनी क्यूरीज वगैरह को दोबारा देखिए, कोई सवाल है तो मुझसे पूछिए, फिर मैं उसके बाद रेस्ट पे जाऊं, मेरी अब बस हो गई है सुबह से। अच्छा अब ये देखिए आप, मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ। अब इसने मुझे कहा, मैं अब सोचता हूँ कुछ फर्ज करो, नहीं वो भी तुम लोगों के लिए आसान है, नहीं प्राइस हिस्ट्री भी आसान। एक मिनट रुक जाओ, मैं अभी एक नया करने लगा हूँ। मैं कहता हूँ मेरे पास कोई बॉलर है, बॉलर जो ये क्रिकेटर्स होते हैं ना, लो यस सर। Yes, sir. Yes, लो sir. बैटरी, अगर मेरी आवाज आने बंद हो जाए तो बोल देना कि सर अब आप लो बैटरी पर आ चुके हैं। तो बस ये सुबह से चलो। अच्छा अभी देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बॉलर, और अब जरा देखना हर बॉलर का अपना अपना, जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं या नहीं भी खेलते उनके लिए बता दो, बॉलिंग रिकॉर्ड होता है कि उस बंदे ने कितने रन दिए, कितनी विकेट टोटल आज तक ली है। अभी तक आवाज आ रही है? जी अच्छा सर आ रही आ है। रही है। क्योंकि ये खातून चीख रही है ब्लूटूथ वाली मेरे कान में, तो मैं कह रहा हूँ यार ये बंद ना तो हो जाए, मुझे बताना कि सर आप बोलना बंद ना करें, आपकी आवाज नहीं आ रही। तो देखो
Now this one is a bowler and the bowling record. My question is, can you have a bowling record that मैं चलो मैं इसको attribute I'll show you that. आंटी पता लग गया ना, लो बैटरी अभी नहीं कुछ कर सकते, ये हो गया। चलो मैं 2 रखता हूँ फिलहाल आसानी के लिए, जल्दी जल्दी से। देखो मैं कहता हूँ कि इस बॉलर ने कितने रन दिए, सिर्फ फिलहाल ये वाइट बॉल सॉल्व नहीं रखना मैं इसकी, ठीक है, और इसने कितनी विकेट ली, ये हर आम बच्चे को भी समझ में आएगा कि सर वो बॉलिंग कराता है और वो रन देता है और वो विकेट, इतना तो सबको समझ में आ जाएगा, या नहीं आ रहा? आ रहे सर। जी सर आ रहे। आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखो, इस अपने बॉलर की बॉलर आईडी होगी, बी आईडी लिख दो इसको, और इसको तुम प्राइमरी की बना, और इसके साथ यहाँ पे इस बॉलर का नेम, फिर टीम का एक अलग एंटिटी क्लास बनेगी, पाकिस्तान टीम और फलाने की, लेकिन अभी हम उससे नहीं जा रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो वी हैव प्राइमरी की बॉलर आईडी एंड वी हैव बॉलर नेम एंड इट इज नॉट डिफाइंड। सो नाउ आई जस्ट रिलीज 9 लगाता हूँ। So now just let me know if there is some specific match or something. How can I relate that bowling record to the bowler? Because it is the weak entity class. Yes or no? सर आपकी आवाज नहीं समझ लग Yes. रही। सर आपकी आवाज के से शोर थोड़ा बहुत शोर आ आ रहा है। शोर आ रहा है, समझ नहीं लग Good रही। job, good job. That is it. अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप लोग मुझे देख सक रहे हैं, सुन सक रहे हैं? यस सर। यस सर। यस सर। वालेकुम सलाम। असल में आपकी आवाज अरे यार। कैसे आना बंद हो गई थी, ब्लूटूथ ऑफ हुआ है तो उसने अपना कंट्रोल ही रख दिया, ही नहीं होगा क्या किया। एनी हाउ चलो वापस आओ जल्दी से। अच्छा अब देखो बेटा, मैं अब आपसे एक बात करता हूँ कि ये देखो, इट इज अ वीक एंटिटी क्लास, क्या सुन लो। जी सर। यस So I try to give it some ID. I want to give it some ID, and I say that it is young, but I want to give it, for example, bowling B dash R dash ID, and I tell you this is, I want to make it a primary key, BRID. It can be 1, it can be 2, it can be 3, it can be 4. Are you getting me? यस सर। यस सर। अब यहाँ पर एक इशू आ सकता है कि ये मेरे पास रिपीट Yes, हो रहे sir. हो, मेरे पास टेक्स्ट का रिकॉर्ड था, फिर कुछ और बना, तो अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पर इसको शो करने के लिए? व्हाट एल्स आई नीड? देखो बैटिंग रिकॉर्ड आईडी जो है ना वो, या बॉलिंग रिकॉर्ड आईडी, that would have value 1, but who will tell me this one is for which bowler? बॉलर सर आईडी। उसका नेम। देखो बॉलर उसका नाम। बॉलर आईडी नहीं है, मैं बॉलर रिकॉर्ड आईडी कह रहा हूँ। यानी फर्स्ट करो, मैं कहता हूँ उसका जो पहला रिकॉर्ड था वो था जी, फॉर एग्जांपल उसने 202 रन दिए थे टेस्ट मैच में, और उसने 13 विकेटें ली थी 2 इनिंग्स में, 2 इनिंग्स में 13 विकेटें। तो मेरी बात समझ रहे हो सारे कि नहीं? यस जी Yes, सर। sir.
अब जरा देखो, उसी बॉलर ने, वही बॉलर है, उसकी आईडी रिकॉर्ड की चेंज हुई है कि इसने एक और रिकॉर्ड कायम किया। इसने सिर्फ 97 स्कोर दिया और इसने 6 विकेटें ले ली थी पहली इनिंग्स में। तो देखो, अब मुझे बताओ, हु विल टेल मी दिस वन और टू बिलोंग्स टू व्हिच बॉलर? आई नो आई हैव अ बॉलर, फॉर एग्जांपल वन। आजकल कौन बॉलर इन है, मुझे नहीं इतना ज्यादा याद रहता। बॉलर का नाम लो, कौन सा बॉलर आजकल के मैं हसन अली है। हसन अली, शाहीन अफरीदी, हसन अली, मोहम्मद आमिर। इज शाहीन अफरीदी। यस सर, शाहीन अफरीदी। Yes, sir. ये शाहिद का जानने वाला है कोई? आमिर sir. सर बहुत हैं। Sir. अच्छा अच्छा, अहमद इजाज सर। 9 साल इसकी बेटे का वो Sir. रिश्ता इसके साथ हो रहा है। अच्छा 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 अच्छा। अब मैं इसको बॉलर वन करना चाहता हूँ। बॉलर वन इज हसन अली एंड बॉलर टू इज, सॉरी मैंने शाहिद लिख दिया, शाहिद आफरीदी, ठीक है। तो नाउ सर शाहीन है, शाहिद नहीं है। शाहीन है, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, क्योंकि मुझे इतना, शाहिद आफरीदी तो हमारे टाइम का था ना, मैं शाहिद ही जहन में चल रहा था, मैं उसको शाहिद लिख गया गलती से। शाहीन आफरीदी। सर वो अभी भी है। सर हम अपने यूनिवर्सिटी वाले हारिस शाहिद राउत को आफरीदी, भूल गए। अब वो कहाँ खेलता है? अब वो तुम्हारे वो खेलता होगा पीएस वगैरह, सर अब वो लीग्स यस खेलता है। सर, पीएसएल लीग वगैरह खेल रहा खेलते होगा। हैं। हाँ ठीक है ठीक है, लीग में चला जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, these two records belong to Hassan Ali. So I need to bring the strong entity class primary key over here, and I need to relate it over here. And now these two will be combined, considered combined. PID. Sorry. अच्छा, अब देखो जरा, now when I say that here we have another record, first record है सर, ये किसका रिकॉर्ड था? मैंने कहा पता नहीं, तुम बताओ। तो आपने कहा अच्छा देखते हैं अभी इसको, कंट्रोल यू वन, और आपने कहा सर एक और है, इसने 201 रन देकर 9 विकेटें ली थी। नाउ चेक, 1-1 जो है बार बार आना शुरू हुआ है। हमने कहा फर्स्ट रिकॉर्ड है, दूसरा रिकॉर्ड है, उसका तीसरा। अब हो क्या रहा है जरा चेक करो। वी नीड इन फैक्ट द बॉलर आईडी एज इट, which bowler and which record. So now I simply say that bowler number one, who is bowler number one? हसन अली। ओह, हसन अली सर। So Hassan Ali's first record is 202 and 13 wickets, and same Hassan Ali's second record is 97 run with 6 wickets. Yes or no? यस सर। यस सर। And another bowler T2, मैं चीखना शुरू हो गया जज्बाती होके। T2 has the first record of 201 in 9. अब बताओ, थोड़ा सा समझ में आया या पूरा आ गया? आ गया सर। सर आ जिस गया। बच्चे ने सवाल किया था उसको आया या नहीं, ये बताओ। 5। एक्सीलेंट, चलो शुक्र है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो ताकि तुम्हें याद रहे कि यार ये एक बिल्कुल अलग, हमने कहा था कि सर आउट ऑफ द वे कोई मिसाल दे दे हमें जो आपके नोट्स में नहीं है, तो ये आउट ऑफ द वे है। सर ले लिए। चलो अच्छा, अभी मैं इसको यहाँ पे, ताकि बाकी बच्चे भी इसी को, जिनको डांट पड़ी है वो भी इससे पढ़ लें।